2013 کے عام انتخابات میں پاکستانی قوم نے ایک بار پھر مسلم لیگ نون پر اعتماد کیا اور پہلے پنجاب اور پھر قومی سطح پر اقتدار میں لے آئی۔ ہمارے اقتدار کو ابھی ایک سال نہ گزرا تھا کہ ہماری حکومت کو ایک بار پھر سیاسی سازشوں اور محاذ آرائی کا شکار کر دیا گیا۔ یہ سب اس وقت ہوا جب ہم نے 5 جولائی 2013 کو سی پیک کے معاہدے کا اعلان کیا، لیکن اس سیاسی محاذ آرائی کے باعث چینی صدر شی پنگ کو اپنا دورہ ملتوی کرنا پڑا اور پھر انہوں نے 14 سے 17 ستمبر 2014 تک پاکستان کا دورہ کیا، اور ان سب سازشوں کا مقصد پاکستان کو عدم استحکام کا شکار کرنا تھا۔ ان سازشوں کا شکریہ کہ چین کے صدر کی جانب سے طے شدہ دورے کی منسوخی نے ثابت کر دیا کہ دھرنے قومی مفادات کے لیے کس قدر نقصان دہ تھے۔ سازشوں کا یہ سلسلہ یہاں تک ہی محدود نہیں رہا۔ پیناما پیپرز، جن میں میرا نام تک شامل نہیں تھا، کا سہارا لیا گیا اور من گھڑت 145 مقدمہ 146 بنایا گیا۔ سب سے پہلے مجھے وزارت عظمیٰ کے منصب سے اور پھر مسلم لیگ نون کی منتخب صدارت سے ہٹایا گیا۔ یہ ایسے اقدامات تھے جن کی پاکستانی سیاسی تاریخ میں کوئی مثال نہیں ملتی۔ میرے تمام اقدامات کو مسترد کر دیا گیا، حتیٰ کہ میری پارٹی اراکین سے جماعت کے انتخابی نشان کے حصول کا حق بھی چھین لیا گیا۔ 1993 کی طرح میں نے ایک بار پھر واضح کر دیا کہ جمہوری اصول اور آئین کی بالادستی میری ذات اور پارٹی سے کہیں بڑھ کر اہم ہے۔ یہ ایک وفاقی، پارلیمانی، جمہوری اور اسلامی جمہوریہ پاکستان کے مستقبل کا سوال ہے۔ ووٹ کو عزت دو محض ایک نعرہ ہی نہیں، بلکہ یہ میرے ایمان کا حصہ ہے۔ اس نظریے کی بنیاد قیام پاکستان اور بانی پاکستان پر انحصار کرتی ہے۔ پاکستان خود جمہوری عمل کے ذریعے وجود میں آیا۔ 20ویں صدی کے عظیم ترین رہنماؤں میں ایک قائد اعظم محمد علی جناح آل انڈیا مسلم لیگ جیسی مقبول جماعت کے سربراہ تھے۔ انہوں نے ووٹ کی طاقت سے ہی آزادی کی جدوجہد کو کامیابی سے ہمکنار کیا، اور یوں 14 اگست 1947 کو دنیا کے نقشے پر ایک آزاد اور خود مختار ملک نمودار ہوا۔ جب ہم ووٹ کی عزت دو کی بات کرتے ہیں تو دراصل ہم قیام پاکستان کی بات کرتے ہیں، جو کہ ووٹ کی طاقت سے وجود میں آیا۔ ہم ووٹ کی حرمت، تحفظ اور فروغ کو یقینی بنانا چاہتے ہیں۔ پاکستان مسلم لیگ نون قائد اعظم محمد علی جناح کی آل انڈیا مسلم لیگ کی جانشین جماعت ہے، اور یہ ہم پر واجب ہے کہ ہم پاکستان میں جمہوریت کے فروغ، قانون کی حکمرانی، سیاسی ہم آہنگی، اقلیتوں کے حقوق کے تحفظ، خواتین کے احترام اور آئین کی بالادستی کو یقینی بنائیں۔ ہمیں یہ ہرگز نہیں بھولنا چاہیے کہ بانی پاکستان کی بہن ملت فاطمہ جناح ہی تھیں جو سب سے پہلے فوجی آمر کے خلاف عوام کی جانب سے اٹھ کھڑی ہوئیں، اور اگر 1965 کے انتخابات میں دھاندلی نہ ہوتی تو وہ ملک کی پہلی منتخب صدر ہوتی اور پاکستان کبھی بھی تقسیم نہ ہوتا، اور آج اسے مشرقی اور مغربی پاکستان دونوں کی بھرپور سپورٹ حاصل ہوتی۔ میں مسلم لیگ نون کے ساتھیوں اور پاکستان کی عوام کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مسلم لیگ نون کی سیاست ایک نعرے کے گرد نہیں گھومتی، بلکہ یہ ایک مضبوط پاکستان کی تعمیر کے لیے بھرپور جدوجہد کے گرد گھومتی ہے، جسے یقینی بنانے کے لیے ہم پرعزم اور اس چیز کا اظہار کرتے ہیں کہ ملک کے مختلف حصوں میں قومی سلامتی سے متعلق تاریخی فیصلے کرنے کا کریڈٹ بھی مسلم لیگ نون کو ہی جاتا ہے، جس نے نہ صرف پاکستان کو ایک ایٹمی قوت بنایا بلکہ کراچی میں قیام امن کے لیے تمام تر دباؤ کو مسترد کیا جو کوئی دہائیوں سے اذیت کا باعث بنا ہوا تھا۔ آپریشن ضرب ازد کا آغاز کیا، جس کی مدد سے فاٹا کو دہشت گردوں سے پاک کیا۔ موٹر ویز کی مدد سے پاکستان میں جدید راہ ہموار کی گئی، جبکہ سی پیک جیسے معاہدوں سے پاکستان اور اس کے مطابق اس کو آگے بڑھایا گیا۔ پاکستان اور پاکستان مسلم لیگ نون کی قسمت باہم جڑی ہوئی ہے۔ میں اپنی پارٹی، اس کے جانثار کارکنوں اور پاکستان کے عوام کا شکر گزار ہوں جو حالات کے تمام تر اتار چڑھاؤ کے باوجود میرے ساتھ کھڑے ہیں۔ پاکستان اس وقت ایک اہم سنگم پر کھڑا ہے۔ کیا پاکستان کی قسمت کا فیصلہ چند لوگوں کے ایک گرد
एक गिरोह को करना है और उनके गिर्द घूमना है, साजिशी जत्थे को करना चाहिए, या फिर पाकिस्तान के आम अवाम मर्द ख्वातीन का हक है कि वोट की ताकत से अपनी किस्मत का फैसला खुद करें। मैं मुकम्मल तौर पर पुरएतमाद हूँ कि अल्लाह ताला की रहमत से पाकिस्तान के अवाम गुज़श्ता 25 साल में तीसरी बार एक मकसद ही को सपोर्ट करेंगे। पाकिस्तान और पाकिस्तान के करोड़ों लोगों के रोशन मुस्तकबिल का वाहिद हल है। मुझे कामिल यकीन है कि हम तारीख की मस्बत जानिब खड़े हैं। सच की जीत होगी और हम यकीनन कामयाब होंगे। कायदे आज़म जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। मोहम्मद नवाज शरीफ। मट्टी की मोहब्बत में हम आशुक्ता सरों ने वो कर गुजारे हैं जो वाजिब भी नहीं थे। हाज़रीन कराम, साल 2018 के इंतखाबात में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इस अज़्म के साथ उतर रही है कि तालीम और तरक्की के सफर को जारी रखने और अवाम को सेहत, तालीम और रोजगार की फरमाही के लिए हर मुमकिन कदम उठाए जाएंगे। इस तमाम से मरकजी सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जनाब मोहम्मद शहबाज शरीफ से कि वो पार्टी का एक्सप्रेस न्यूज हेडलाइंस को आप तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ ताउन किया है। करोड़ों माएं भरोसा करती हैं कोलगेट पर। माँ का भरोसा डेंटिस्ट का तजवीज करता कोलगेट। और अपग्रेड टू टेलनॉर 4G स्पीड जो हर पाकिस्तानी चाहे। इमरान खान कहते हैं कौम का पैसा चोरी करके मुल्क से बाहर भेजा गया। नवाज शरीफ ने अरबों चोरी किए, किसी वजीर का ज़मीर नहीं जागा, मगर अब लोगों के ज़मीर जाग रहे हैं। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। नून लीग के साबिक सेनेटर जफर अली शाह तहरीक इंसाफ में शामिल हो गए। ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं जनाब कायद मियां नवाज शरीफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अपनी तरफ से और अपनी पार्टी की तरफ से आप सबको दिल की गहराइयों से खुशामदीद कहता हूं, और ख़ास तौर पर जो लाहौर से बाहर से आए हैं उनकी खुसूसी तौर पर उनका बेहद शुक्रिया कि ऐसे ख़राब मौसम में आप कराची से और पाकिस्तान के दूसरे हिस्सों से आप तशरीफ़ लाए हैं। हमारे लिए ये इंतहाई खुशी की बात है और काबिले फ़ख्र बात है। मैं एक मरतबा फिर आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं, और आज इस तारीख़ी लम्हे पर ये मुझे एजाज़ हासिल हो रहा है कि हम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का इंतखाबी मंशूर 2018 आपके सामने पेश करने की ये सआदत मुझे हासिल हो रही है। मैं बहुत तफसील से बात नहीं करूंगा और इख्तिसार के साथ चंद मारूज़ात आपकी खिदमत में पेश करूंगा। पहली बात ये कि 2013 का जो इंतखाबी मार्का था और उस वक़्त मुल्क के अंदर सियासी पार्टियों ने जो अपना मंशूर पेश किया था, मैं समझता हूं कि वो मंशूर मुल्क की अहम सियासी पार्टियों ने पेश किया, और फिर 2018 मई तक उस मंशूर के ऊपर कितना किस पार्टी ने अमल किया, ये है वो पैमाना यार्ड स्टिक जिससे कि आप और पूरी पाकिस्तानी कौम परखेगी, तय करेगी कि किस पार्टी ने अपने इलेक्शन स्लोगन्स के ऊपर अमल किया और किन्हों ने खाली खोली माजी की तरह सियासी कलाबाजियां की और बड़े बड़े बयानात दिए जो अमल से खाली थे और
उनके ऊपर कोई अमल ना किया। मैं समझता हूं कि हर हवाले से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी आजिज़ी के साथ मगर बड़े इत्मीनान के साथ आज पूरी कौम के साथ ये बात कह सकती है कि हमने जो इस मुल्क के 2013 में बड़े चैलेंजेस थे, जो गंभीर मुश्किलात थी, जिसने पाकिस्तान की मईशत को और पाकिस्तान के अमन को तहवाला किया हुआ था, उनमें बिजली की लोड शेडिंग सबसे बड़ा मसला था और उसके साथ साथ टेररिज्म और इंतहा पसंदी ने पाकिस्तान के अमन को तबाह कर दिया था। आज मैं चाहता हूं कि आपके सामने इस हवाले से मैं गुजारिशात पेश करूं। 2013 में याद करें, 12 में 11 में पूरे मुल्क में लोड शेडिंग की बिना पर पूरा मुल्क सरापा एहतजाज था। कराची से लेकर पेशावर तक टायर जलाए जाते थे, वापडा के दफातर के सामने एहतजाज होते थे, पत्थर फेंके जाते थे और पाकिस्तान की मईशत तबाही के दहाने पे खड़ी थी। हमारी जो इकॉनमी हर साल 2% सिर्फ बिजली ना होने के बिना पर उसमें कमी आ चुकी थी। बेरोजगारी हर तरफ फैली हुई थी। तुलो अर्ज में पैदावारी अहदाफ खत्म हो गए थे, एक्सपोर्ट्स तबाह हो गई थी, ज़राअत पीली पड़ गई थी और सनतों की चिमनियों से धुआं निकलना खत्म हो गया था। लाखों लोग बेरोजगार थे। ये था वो मंजर जिसको आप भी आज अपने ज़हनों में लाएं तो खौफ तारी हो जाता है। मियां नवाज शरीफ, हमारे जो कायद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, उन्होंने 2013 के इलेक्शन में कौम से वादा किया कि अगर कौम ने मुझ पर एतमाद किया तो मैं इंशाअल्लाह पूरी कोशिश करूंगा कि पाकिस्तान में बिजली की लोड शेडिंग का खात्मा हो सके और ये मुल्क आगे बढ़ सके और मईशत का पहिया तेजी से चले और पाकिस्तान दोबारा अपने पांव पे खड़ा हो सके। ये था वो वादा मियां नवाज शरीफ का। मेरे बुजुर्गों, भाइयों और बहनों और नौजवान साथियों, आज इन 5 साल में आप खुद अंदाजा कर लें। साबिक वजीर आजम शाहिद अब्बासी यहां पर तशरीफ फरमा है। ये भी 8-9 महीने इन्होंने भी दिन रात मेहनत की और मुस्लिम लीग नून का एजेंडा, मियां नवाज शरीफ का एजेंडा, उसको आगे बढ़ाया इन्होंने और सैकड़ों और इन्होंने या तो संगे बुनियाद रखे या इफ्तिताह किए। 11,000 मेगावाट बिजली इन 5 सालों में नेशनल ग्रिड पे लेके आए हम। 11,000 मेगावाट। और इसकी जो एनालिसिस ये है, तकरीबन 3,000 मेगावाट सी पैक के जरिए आया। 3,000 मेगावाट सी पैक के जरिए आया और उसके ऊपर अरबों डॉलर की वो सरमायाकारी, चीनी सरमायाकारी है। 5,000 मेगावाट एलएनजी बेस्ड मंसूबों के जरिए आया, जो कि हुकूमत पाकिस्तान, मुस्लिम लीग नून की हुकूमत और पंजाब की हुकूमत ने मिलकर लगाए। ये हो गया 8,000 मेगावाट। बाकी नीलम जेलम जो 20 साल से यानी रेंग रहा था, उसको मियां नवाज शरीफ ने धक्के दे देकर उसको आज 20 साल बाद उसको काबिल अमल बनाया। तरबेला 4 वहां पर 1000 मेगावाट का इजाफा वहां पर किया गया। इसी तरह हमारे न्यूक्लियर पावर प्लांट, उनमें चंद 100 मेगावाट का इजाफा हुआ
और पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा शमसी तवानाई से चलने वाले मंसूबे लगाए गए, जो चल रहे हैं। हवा से, विंड पावर, वो मंसूबे चल रहे हैं। इस तरह ये मजमूई तौर पर 11,000 मेगावाट 5 सालों में और 18,000 मेगावाट 66 सालों में, ये है हमारी 70-71 साला तारीख का जो कलेक्टिव जो हमारी जो एफर्ट हुई है, 6 एक तरफ और ये 5 साल एक तरफ। तो मेरे बुजुर्गों, भाइयों और बहनों, और मैं कौम इन कैमरास के जरिए पूरी कौम को बताना चाहता हूं, ये है वो एफर्ट जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट ने, पॉलिटिशियन ने, अफसरान ने, एक्सपर्ट्स ने, वजीर आजम मियां नवाज शरीफ की लीडरशिप में ये की। और मैं आज फिर यहां पर ये बात बड़ी आजी से लेकिन बड़े एतमाद से ये बात करना चाहता हूं कि जो सीपैक की जो बिजली की सरमायाकारी हुई है, वो तो चाइना की सरमायाकारी है, उस पर तो कोई आप अपना एतराज नहीं उठा सकते। हां, जो 5,000 मेगावाट जो हमने इन 5 सालों या 4 सालों में लगाए हैं, तकरीबन 2-2.5 अरब डॉलर की लागत के साथ, जो कौमी वसाइल, मेहनत और खून पसीने की कमाई है, उसके लिए लगाए हैं। ये मैं यहां पर आज नैब कसूरज आबोताब से ये अपना चल रहा है। आज अदालत उज़्मा भी पूरी तरह रूबामल है और बड़ी एक्टिवली जो मंसूबे हैं उनको फॉलो कर रही है। मैं आज फिर बड़े आजी के साथ मगर एतमाद के साथ कहता हूं कि ये 5,000 मेगावाट जो पिछले 2.5 सालों में जो मंसूबे लगे हैं पाकिस्तानी वसाइल से, न सिर्फ तारीख के अंदर सबसे स्पीडी बरक रफ्तार मंसूबे लगे, बल्कि शफाफ तरीन लगे, और उससे ऊपर माजी में इस तरह के मंसूबों के मुकाबले में इनकी कीमत आधी कीमत है। और आधी कीमत में कई के वो माजी में जो मंसूबे लगे इस तरह के, वो लगे $9 लाख में, $1 मिलियन पर मेगावाट में, और ये लगे $4.5 लाख पर मेगावाट। और इस तरह 160 अरब रुपए कौम के बचाए गए। मैं नैब को चैलेंज देता हूं आज फिर, और मैं बड़े इंकिसारी से अदालत उज़्मा की खिदमत में अर्ज करता हूं कि वो चेक करा लें। अगर 1 पाई भी कम हो तो मैं जिम्मेदार हूं। तो मैं समझता हूं कि ये है वो खाली बिजली मुहैया नहीं की गई नंदीपुर की तरह, जहां पर बेड़ा गर्क कर दिया गया, जहां पर 20-20 साल नीलम जन्म को लग गए, $5 अरब खर्च हो गए, कौम का वक्त तबाह किया गया, कौम के वसाइल तबाह किए गए। दूसरी अचीवमेंट कि कराची समेत पूरे मुल्क में अमन कायम किया गया। ये अमन कायम करने की सही ये ख्वाहिश, ये पॉलिटिकल विल और ये विजन, ये मियां नवाज शरीफ की लीडरशिप में इसका फैसला हुआ। और फिर पूरे मुल्क में अफवाज पाकिस्तान ने अपनी अजीम कुर्बानियों के जरिए और अजीम काविशों के जरिए उन्होंने ये अमन कायम किया, कराची में अमन कायम हुआ। तो ये 2 सबसे बड़ी अचीवमेंट्स हैं हमारी मुस्लिम लीग नून गवर्नमेंट के इस 5 साला दौर में। अब आए आगे चलते हैं। मैं माजी में मजीद मिसालें देने की जरूरत नहीं है, मैं आगे चलता हूं कि अब 2018 का ये जो मंशूर जिसकी कॉपियां आपके पास आ जाएंगी, इसके बाद आपको तकसीम कर दी जाएंगी और आप इसको अच्छी तरह इसका मुताला करेंगे और फिर इंशाल्लाह मकाले भी लिखेंगे और तज़िये भी करेंगे और डिबेट्स भी होंगी। मैं इसकी जो चीदा जो इसकी जो खदोखाल वो आपके सामने पेश करना चाहता हूं। सबसे पहली बात यह है कि किसी भी कौम को तवाना करने के लिए, किसी भी कौम को अपने पांव पे खड़ा करने के लिए 2-3
रिक्वायरमेंट्स इंतहाई जरूरी हैं। पहले प्रोटेक्शन, खास तौर पर उन तबकात की जो कमजोर हैं माली लिहाज से, जो कि खत फलास से कम जिंदगी बसर करते हैं, जिनके सरों पर कोई दस्ते शफकत देने वाला नहीं होता और जो जिंदगी के अंधे थपेड़ों का मुकाबला करते हैं अल्लाह की रजा से। जब तक कि उन तबकात की खैर खही और उनके सरों पर हाथ नहीं रखा जाएगा, जिसको प्रोटेक्शन कहते हैं, सोशो इकोनॉमिक प्रोटेक्शन, तब तक वो सोसाइटी आगे नहीं बढ़ती। इसके साथ ही जुड़ा हुआ है हेल्थ और एजुकेशन, और दूसरा है एम्पावरमेंट, कि आपने पहले प्रोटेक्ट किया सोसाइटी को और उसके बाद एम्पावर किया। और ये बातें भी मैं पिछले 5 साल परफॉर्मेंस की बुनियाद पर करना चाहता हूं कि बिस्प, जो कि खत फलास से कम जिंदगी बसर करने वाले अफराद के लिए जो कफालत का एक प्रोग्राम माजी में चला आ रहा था, मियां नवाज शरीफ की गवर्नमेंट में वो पिछली हुकूमत में 40 अरब सालाना था, मियां नवाज शरीफ की गवर्नमेंट में वो 120 अरब रुपया सालाना हो गया। 120 अरब रुपए। इस प्रोग्राम को हम जारी और सारी रखेंगे। इस प्रोग्राम को इस तरह हम रिफॉर्म भी करेंगे कि आइंदा अगर अल्लाह ताला ने हमें मौका दिया तो फिर हम इस प्रोग्राम में मजीद इजाफा करेंगे। इसको हम सालाना 200 अरब तक लेके चले जाएंगे, मगर इसमें साथ शर्त ये होगी कि जो माहाना या सहमाही जो उनको वजीफा मिलता है, मंथली स्टाइपेंड, शर्त ये होगी कि हर खानदान एक अरसे बाद, 6 महीने बाद या 3 महीने बाद वो सर्टिफाई करेगा, एक सर्टिफिकेट देगा कि मेरी बेटी या मेरा बेटा फलां स्कूल में तालीम हासिल कर रहा है, फलां जगह उसको दाखिला मिला और वो एजुकेशन हासिल कर रहा है। अदरवाइज दिस प्रोग्राम, गॉड फॉरबिड, कैन बिकम अ सोर्स ऑफ रेजिंग एन आर्मी ऑफ बेगर। वी वांट टू रेज एन आर्मी ऑफ आर्किटेक्ट्स, ऑफ इंजीनियर्स, एजुकेटर्स, साइंटिस्ट, पॉलिटिशियंस। तो इसलिए इस प्रोग्राम को हम मशरूत कर देंगे कि वो आइंदा वजीफे उनको मिलेंगे, उन खानदानों को जो कि अपना ये सर्टिफाई करेंगे कि उनकी बेटियां और बेटे स्कूलों में तालीम हासिल कर रहे हैं। और फिर जब वो आगे बढ़ेंगे तो वो स्किल ट्रेनिंग हासिल कर रहे हैं, और जो काबिल और ज़हीन फतीन है वो यूनिवर्सिटियों में जाएंगे। तो एक तो ये हम इस प्रोग्राम इस तरह करेंगे, और ये जारी और सारी है। जिस तरह मैंने कहा कि हम आज को नई बात नहीं कर रहे। आप उनको देखें जिन्होंने अपने सूबों में धेले का काम नहीं किया और बड़े बड़े अपने जो मंशूर में उन्होंने नारे लगाए और दावे किए हैं। खुदारा मैं आपसे अपील करता हूं और पूरी कौम से कि इन दावों का आप एनालिसिस करें, कोल्ड कैलकुलेशन एनालिसिस करें, और फिर परखें कि इन्होंने इन 5 सालों में, और कुदरत का निजाम देखें कि सब बड़ी पार्टियों को मौका मिला चारों सूबों में और वफाक में हुकूमत करने का। लिहाजा कोई मुश्किल बात नहीं कि हमने पंजाब में क्या किया और उन्होंने अपने सूबों में क्या किया। यह है वो एक कंपैरिजन। दूसरी बात, ज़ेवरे तालीम प्रोग्राम हमने पंजाब के अंदर, जनूबी पंजाब में हर बच्ची को जो 6ठी जमात में है उसका वजीफा 200 रुपए से बढ़ा के 1000 रुपया कर दिया था। इसका मकसद यह है, कोई पढ़ाई के लिए खुदा न खास्ता रिश्वत नहीं है, टू मेक एनरोलमेंट सस्टेनेबल, ताकि वो बच्ची अपने वालिद या वालदा की मुश्किलात की बिना पर, परवेज ऋषि साहब इधर सुनिएगा मेहरबानी करके, मुश्किलात की बिना पर वो बच्ची या उनको वालिद या वालदा अपने किसी घर में बर्तन साफ करने के लिए ना लगा दें, उनके लिए ये हमने वजीफा। और 6 अरब रुपए हम साल का हम ये बिल दे रहे हैं। इसको हम पूरे पाकिस्तान में नाफिज, पूरे पाकिस्तान में इसी तरीके से खुद रोजगार स्कीम, जिसके ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह एक शानदार और शफाफ तरीन प्रोग्राम पाकिस्तान की तारीख में वज़े किया गया अखुवत के जरिए, वो 20 लाख अफराद को, इस सूबे के अंदर 20 लाख अफराद को
रोजगार मिला बच्चों और बच्चियों को, और प्रेफरेंस उनको दी गई जिनके पास कोई हुनर है, कोई स्किल है, सिलाई कढ़ाई की या किसी और शोबे की, उनको प्रेफरेंस दी गई। और ये 20 लाख अफराद का मतलब ये है कि अगर एक घराना 6 अफराद पर मुश्तमिल है तो ये 20 लाख अफराद नहीं है, ये 20 × 6 1,20,00,000 लोगों के लिए ये जरिया माश बना। और वो लोग और वो बच्चियां और बच्चे जो बेरोजगार थे, अपने खानदानों पर बोझ बजने के बजाय उनका बोझ बांटा, कौम का बोझ बांटा। इसी तरीके से आप देखें कि पंजाब एजुकेशन एंडाउमेंट फंड, जिसके जरिए पूरे सूबे में और पूरे मुल्क में, उनको भी हमने कोटे दिए थे बाकी सूबों को, 4.25 लाख काबिल तरीन बच्चों और बच्चियों को वज़ाइफ दिए गए तालीमी, जो कि इंतहाई काबिल और ज़हीन थी या हैं, मगर उनके पास एक वक्त की रोटी के वसाइल नहीं थे। वो तालीम कहां से दिलवाते? आज हजारों डॉक्टर्स बन गए हैं, इंजीनियर्स बन गए हैं, और पाकिस्तान की बेहतरीन यूनिवर्सिटीज में वो आज तालीम हासिल कर रहे हैं। इस प्रोग्राम, इसके ऊपर हमारे इन 10 सालों में 17 अरब रुपए खर्च हुए। इस प्रोग्राम को हम पूरे पाकिस्तान में नाफिज़ अमल करेंगे, और पूरे पाकिस्तान के, और अगर इस तरह का प्रोग्राम कायद आज़म के आंख बंद करने से पहले शुरू होता तो आज इस मुल्क में ना खानदगी की बात ना होती, इस मुल्क में आज गुर्बत की बात ना होती। बाहर कैफ, हमें उसके ऊपर अब रोना धोना नहीं, हमें इन शानदार मिसालों से इंस्पायर होके आगे चलना है। इसके अलावा आप देखें कि हेल्थ के मैदान में क्या इनकलाबी प्रोग्राम इन 5 सालों में हुए। शायद आपको इल्म था कि मैं यहां पर मेट्रो की बात करता और ऑरेंज लाइन की बात करता। मैं सोशो इकोनॉमिक इनिशिएटिव्स की बात कर रहा हूं आपके आगे कि हेल्थ में हमने इनकलाब लेके आए। मियां नवाज शरीफ ने हेल्थ कार्ड का इजरा किया, और हेल्थ कार्ड वो है जो कि दुनिया के बहुत तरक्की याफ्ता ममालिक में एक बुनियादी रिक्वायरमेंट है। आप बरतानिया चले जाएं, आप टर्की चले जाएं, आप दूसरे ममालिक में चले जाएं, आम आदमी के पास हेल्थ कार्ड होता है। वगरना अगर खुदा ना खास्ता किसी एक गरीब घराने के एक कमाऊ फर्द अगर वो बीमारी में मुब्तला हो जाए और अल्लाह को प्यारा हो जाए, या बीमारी में जो इलाज होता है उसका खर्चा घर को गिरवी रख कर देना पड़े, तो उसकी तो नस्लें भी वो कर्ज नहीं उतार सकती। तो ये हेल्थ कार्ड जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट ने इसका इजरा किया, मियां नवाज, ये एक इंकलाबी तरीन ये एक कदम था हमारी गवर्नमेंट का। बास सूबों ने इनकार कर दिया कि जी इस पे उन्होंने सियासत की। हमने तो बिस्प के ऊपर कोई सियासत नहीं की। मियां नवाज शरीफ ने फैसला किया था कि मोहतरमा बेनज़ीर शहीद हो गई हैं, हम इस प्रोग्राम का नाम चेंज ना करें, हम इस प्रोग्राम का नाम चेंज ना करें और इसको बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम ही रहने दें। मगर उनके जमाने के 40 अरब को 120 अरब बना के उन्होंने पूरे मुल्क में इसको जारी व सारी रखा। और यहां पर हेल्थ कार्ड जो केपीके के भाइयों बहनों के लिए, जो सिंध के भाइयों और बहनों के लिए, पंजाब के, बलूचिस्तान के और गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर के बाद सूबों ने इनकार कर दिया कि हम नहीं लेंगे। हालांकि फेडरल गवर्नमेंट ने कंट्रीब्यूट करना था, साथ उन्होंने कुछ शेयर करना था, उन्होंने इनकार कर दिया। किस्सा मकसद कि पंजाब में 17 अजला में ये हेल्थ कार्ड का अपना इजरा हो चुका। बाद सूबों में कुछ अजला में काम शुरू हुआ है। हालिया साल में या पिछले 2 सालों में हम इस मंशूर में ये ऐलान कर रहे हैं कि इंशाअल्लाह इस हेल्थ कार्ड को पूरे पाकिस्तान में इंशाअल्लाह हम पूरे जोरों शोर से इसका नाफिज़ुल अमल करेंगे। और इसका क्या फायदा होगा कि आम आदमी, गरीब आदमी, उसकी अगर अपना बेटी या वालदा या वालिद या बहन अगर उसके ऊपर पूरी पूंजी खर्च हो गई तो वो उम्र भर वो अपनी तनख्वाहों से वो कर्ज नहीं उतार सकता। इसी तरीके से हमने पंजाब के अंदर जो हेल्थ रिफॉर्म्स की हैं,
आप में से कई लोग मेरे साथ अपना दूर दराज इलाकों में अस्पतालों में गए हैं। मुझे सिर्फ इतना आपको कहना है कि आपकी तोसत से मुझे पूरी उम्मीद है कि आपकी पूरी इंडोर्समेंट है कि हमने पंजाब के हर जिले के अस्पताल को हमने टर्की और मलेशिया के हमने हमपल्ला कर दिया। वहां पर सीटी स्कैन्स हैं, फ्री सीटी स्कैन चलते हैं 24 घंटे, पैथोलॉजी लैब्स हैं, ड्रग टेस्टिंग लैब्स हैं, फिल्टर क्लिनिक्स हैं, हेपेटाइटिस का शानदार इलाज होता है, डॉक्टर्स का अमला बढ़ गया, 7000 बेड का इजाफा हो गया, हजारों लोग अमले के, चाहे वो नर्सेज हैं चाहे वो दूसरे लोग डॉक्टर्स हैं, उनको हमने वहां पर उनको शामिल किया और दूर दराज इलाकों में स्टेट ऑफ द आर्ट अस्पताल बनाए और अद्वियात मुफ्त पूरे पंजाब के अस्पतालों में और आला तरीन अद्वियात। आप मेरे साथ गए, आपने हर चीज देखी अपने खुद, डायलिसिस सेंटर्स स्टेट ऑफ द आर्ट, फीमेल वार्ड्स, मेल वार्ड्स, आईसीयू। अस्पतालों की शक्ल बदल गई है। एक जमाना वो था कि उन अस्पतालों में कोई जाता नहीं था, अब प्राइवेट अस्पताल छोड़कर लोग उन सरकारी अस्पतालों में जाते हैं, यानी दुनिया बदल गई। इस निजाम को हम पूरे पाकिस्तान में लेके आएंगे, पूरे पाकिस्तान में। और यहां पर मुझे कहने दीजिए कि केपीके में जनाब इमरान खान साहब का तो नारा ही एक था, न्याय साहब आपको तो नारा ही एक था कि जनाब हम यूनिवर्सिटियां बनाएंगे, हम अस्पताल बनाएंगे, हम एचआर को ट्रेन करेंगे, हम लैब्स बनाएंगे, इनोवेशन सेंटर बनाएंगे। केपीके का बेड़ा गर्क हो गया। वहां के अवाम झोलियां उठाकर उनके लिए बद्दुआएं करते हैं कि इन्होंने अपने ना सिर्फ वादे पूरे नहीं किए, वक्त जाया किया। ना कोई यूनिवर्सिटी बनी, ना कोई अस्पताल बना, ना कोई ड्रग टेस्टिंग लैब बनी, ना कोई पैथोलॉजी लैब लगी, ना एमआरआई आई, ना सीटी स्कैन आया। ये निजाम जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने पूरे पंजाब में नाफिजुल अमल किया है, उसको हम इंशाल्लाह पूरे पाकिस्तान में हैं, इसको हम रेप्लिकेट करेंगे। ये है मेरे बुजुर्गों, भाइयों और बहनों प्रोटेक्शन। तालीम की मैंने बात अब मैंने कर ली, वजीफे की बात मैंने की। हमने एनरोलमेंट पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन, जिससे 20 लाख बच्चे अपने मोहल्लों में वाउचर स्कीम के जरिए उनको दाखिला मिलता है। हुकूमत पंजाब वाउचर देती है 1200-2000 फीस की जितनी भी, और उनको कहा जाता है कि इस ब्रैकेट में आपको मोहल्ले में जो भी प्राइवेट स्कूल मिलता है उसमें बच्चों को दाखिल करा लें। इससे 20 लाख बच्चे और बच्चियां वाउचर स्कीम के जरिए अंडर पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन वो दाखिल हुए इन सालों में। इसको हम पूरे पाकिस्तान में नाफिजुल अमल करेंगे। इसी तरीके से हमने पंजाब में इसका इफ्तिताह कर दिया कि हर स्कूल में हम टेक्निकल वोकेशनल सेंटर बनाएंगे। देखें पूरी दुनिया में ये एक मुसलमा एस्टेब्लिश्ड प्रिंसिपल है कि जो लोग बहुत काबिल मेहनती हैं वो जाते हैं आला यूनिवर्सिटियों में, और जो एक लेवल पर आकर रुक जाते हैं उनका वो रास्ता मोड़ देते हैं टेक्निकल स्किल्स ट्रेनिंग में, वोकेशनल ट्रेनिंग में। वहां पर उनका रास्ता मोड़ देते हैं और वहां पर वो कमाऊ हाथ बन जाते हैं। यहां पर कि जी एमए की डिग्री लेनी है, एक सोशल एक रिक्वायरमेंट है, चाहे अपना उसको क्लार्क की जगह ना मिले, तो क्या आपने अपनी तरजीहात तालीम की इस तरह बनानी है? तो तालीम की तरजीहात क्या होंगी कि हमने अल्हम्दुलिल्लाह जिन लोगों ने ऊपर जाना है वो यूनिवर्सिटी में जाएं, लेकिन जिन लोगों का रास्ता मुड़ना है थ्रू देयर मेरिट, उनके हम ट्रेनिंग का इंतजाम करेंगे। पंजाब में हमने इसका इजरा कर दिया। पहली टेक्निकल यूनिवर्सिटी लाहौर में बन गई, काम कर रही है। इस प्रोग्राम को हम पूरे पाकिस्तान में लेके आएंगे, पूरे पाकिस्तान में। और इसी तरीके से और भाई प्लीज, भाई ये देख इसको भाई आप, और भाई प्लीज, और भाई नहीं इस तरह कर भाई, मैं फिर उतर जाता हूँ भाई, मैं उतर जाता हूँ। आप नारे बाद में लगा लें, ये कोई तरीका नहीं है। अब जोश आपको आया है, लेकिन बड़ी संजीदा गुफ्तगू हो रही है। ये तो आप तसल्लुल तोड़ेंगे तो ये बड़े दूर दराज से मेहमान आए, उनका वक्त जाया होगा। खुदारा मैं आपसे अपील करता हूं, नारे आप बाद में लगाएं। इसी तरीके से मैं आपसे गुजारिश कर रहा था
کہ ہم اس طرح قوم کو امپاور کریں گے. اب آ جائیں کہ تعلیم کی بات ہوگی, ٹیکنیکل ٹریننگ کی بات ہو گئی. اب ان کو جابز کس طرح دینی ہے. دیکھیں کہ ٹیکنیکل ٹریننگ بھی مل گئی, ڈگریز بھی مل گئی, جابز کس طرح آپ نے دینی ہے. اس کے لیے آپ نے سرمایہ کاری کو آپ نے اٹریکٹ کرنا ہے. یاد رکھیں کہ جابز کبھی بھی سرکاری محکموں میں اپنا بلا ضرورت نہیں دی جاتی. جابز وہ پروڈکٹیو ہونی چاہیے, منافع بخش ہونی چاہیے, یوزفل ہونی چاہیے, اور وہ پرائیویٹ سیکٹر, کارپوریٹ سیکٹر میں ہو. آپ خود انٹرپرینور بنیں, آپ 4 ملازم رکھیں, کیپٹل لیں, لونز لیں, آپ انویسٹمنٹ کریں, آگے بڑھیں. اسمال اسکیل میں, میڈیم اسکیل میں اس نظام کو ہم آگے لے کے آئیں گے تاکہ لاکھوں لوگوں کو, اب پی ٹی آئی نے کہہ دیا کہ ہم 1 کروڑ لوگوں کو جاب دیں گے. میں یہ تو کہنے کو تیار ہوں کہ انشاءاللہ ماضی کی طرح لاکھوں لوگوں کو روزگار انشاءاللہ مہیا کریں گے. میں جنہوں نے کہا تھا کہ میں پورے پاکستان کو بجلی مہیا کروں گا اور میں اپنا باہر بھی بجلی ہم فروخت کریں گے, کے پی کے میں بجلی پوری آئے گی, اور اب کہتے ہیں کہ صرف 72 میگا واٹ بیٹھی پڑی ہے. تو میں اس طرح کے ہم وعدے کرنے کے قائل نہیں ہیں. گو کہ میں آئی ایم آلویز اے مین ان اے ہری, کہ کل کا کام جو پرسوں گزر گیا ہو جاتا, لیکن بات وہ کریں جس کے اوپر آپ عمل کر سکیں. اس لیے میں نے کہا کہ ہم ان کو روزگار مہیا کرنے کے لیے ہم انشاءاللہ انویسٹمنٹ کلائمیٹ کو بہتر بنائیں گے. ہم تاکہ جو ہمارے جو سرمایہ کار ہیں ان کو ایز آف بزنس, کاسٹ آف پروڈکشن کو کم کروائیں گے. اور کاسٹ آف پروڈکشن کس طرح کم ہوتی ہے؟ بجلی سستی ہو, اور بجلی سستی ہو گئی. آپ دیکھیں کہ آج جو گیس سے بجلی بن رہی ہے وہ 8 روپے پر یونٹ ہے, 7.5 روپے پر یونٹ ہے جو گیس سے بجلی بن رہی ہے. اور وہ ماضی میں وہ منصوبے جو آج بھی جو پرانے گلے سڑے وہ 28 روپے 30 روپے پر یونٹ بناتے ہیں. تو اس طرح میں کسی کے اوپر یہاں پر الزام تراشی کرنے نہیں آیا, کہنے یہ آیا ہوں کہ اگر آپ دل سے, امانت اور دیانت سے اگر آپ کام کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان میں مہربانی کرتے ہیں اور نتائج بہت اچھے نکلتے ہیں. اس لیے جب آپ گیس کی اپنا بجلی کی قیمت کم کریں گے تو کاسٹ آف پروڈکشن کم ہوگی, اپنا ایکسپورٹس بڑھیں گی, کمپٹیشن جو ہے اس میں ہم اچیو کریں گے, جیتیں گے. اگر آپ ایز آف بزنس کہ فلاں نل کا لگوانا ہے تو پیسے دو, فلاں بجلی کا کنیکشن لگوانا ہے تو پیسے دو. ہم انڈر ون روف, جس طرح چائنا میں, جس طرح ساؤتھ کوریا میں یہ ساری فیسلٹیز مہیا ہوتی ہیں, چاہے وہ ٹیکسز جمع کرنا, چاہے وہ بجلی کے بل دینا, چاہے وہ ڈرائیونگ لائسنس ہے, یہ تمام چیزوں کے لیے ہم انڈر ون روف ہم انشاءاللہ یہ نظام لے کے آئیں گے جس سے ایز آف بزنس اور کاسٹ آف پروڈکشن کو کم کرنے کے لیے میں نے بات کی. اور کاسٹ آف پروڈکشن کے ساتھ ساتھ روزگار کے زیادہ مواقع مہیا کرنے کے لیے ہم کیپٹل انٹینسو تو ہے ہی ہے, ہم لیبر انٹینسو جو انڈسٹری ہے اس کو پروموٹ کریں گے تاکہ ان میں زیادہ لیبر کی, اس میں زیادہ ہمارے جو بے روزگار لوگ ہیں ان کو جابز مل سکے. اگلی بات اور بڑی امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ زراعت پاکستان کی ریڑھ کی ہڈی ہے. زراعت از دی بیک بون آف پاکستان اکانومی, اور زراعت کو مضبوط کرنے کے لیے میاں نواز شریف کی گورنمنٹ نے بڑے اقدامات کیے, اور میں جو بات کروں گا آج اٹ ول ہیو ریلیونس ٹو آور پرفارمنس. آئی ول ناٹ بی سیئنگ اینی تھنگ ان دی ایئر. اس کے بعد پرسوں پریس کانفرنس بھی ہوگی. ہم نے زراعت کے لیے کیا کام کیے؟ میاں نواز شریف کی گورنمنٹ میں کھاد کی قیمت آدھی کر دی گئی تاکہ ان پٹ سستے ہوں اور وہ جو کسان جو ہے اپنی آؤٹ پٹ وہ ریزنبل قیمت پر, داموں پر مارکیٹ میں بیچ سکے. نمبر 1. نمبر 2, اور اس کے اوپر اربوں روپے ہم نے اس کے اوپر ہم نے سبسڈی دی. بعض صوبوں نے ایک دھینا نہیں دیا, میں نام نہیں لیتا. اس کے بعد جو بجلی کے چلنے سے جو ٹیوب ویل ہیں, ان ٹیوب ویلوں کو, میں کسانوں کی بات کر رہا ہوں, چھوٹے کسان کی, ان کے لیے ہم نے اربوں روپے کی سالانہ سبسڈی دی تاکہ ان کی بجلی کی قیمت کم ہو اور وہ اپنی جو زرعی اناج جو ہے وہ مناسب داموں پر اگا سکے اور بازار میں بیچ سکے. تیسری بات, پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ مسلم لیگ نون کی حکومت کو یہ اللہ نے
मौका दिया कि हमने छोटे किसान के लिए बिला सूद कर्जे अरबों रुपए के जारी किए। ये तीनों चीजें आइंदा भी 5 सालों में न सिर्फ जारी रहेंगी, बल्कि इसके ऊपर एक और बड़ा इंपॉर्टेंट मैं यहां पर ऐलान कर रहा हूं। हम एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रियल विजन वो पेश कर रहे हैं। वो क्या है कि ज़रूरी अजनास जो हमारी पैदा होती हैं वो अपना मार्केट तक पहुंचने से कई गड़बड़ जाती हैं, कई वजूहात है, मौसमी वजूहात। हमने 100 अरब रुपए इन 5 सालों में पंजाब में खर्च किए और पक्कियां सड़कां ते 100 के पैंडे बनाए। हजारों किलोमीटर ये जो सड़कें हैं वो बन चुकी। और आज आप जो देहात से जिनका ताल्लुक है, आप जानते हैं कि एक इनकलाबी सूरत हाल है। ये खाली वहां पर वो देहात से स्कूल जाएंगे आराम से, देहात से अस्पताल जाएंगे आराम से, देहात से शादी घर जाएंगे आराम से। उनकी जो अजनास है वो मार्केट तक पहुंचेंगे टाइम के ऊपर। रास्ते में वो खड्डा जो वो खड्डा नहीं बन जाएगा और वो अजनास वहां पर सड़ गल नहीं जाएंगी। ये कनेक्टिविटी है, जिस तरह प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने कहा कि कॉरिडोर एंड कनेक्टिविटी, इसी तरह हम कॉरिडोर एंड कनेक्टिविटी के ऊपर हम अमल पैरा हैं। तो ये हम ज़रूरी अजनास की बुनियाद पर देहातों में, कस्बों में हम स्मॉल मीडियम लेवल के हम वहां पर सनतें लगवाएंगे। लेट्स से फॉर एग्जांपल अपना टोमेटो जैम के लिए, फ्रूट जूसेस के लिए, सब्जियों के उनको अपना करने के लिए प्रोसेस हम वहां पर इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स देहात में लेके जाएंगे। उसका सबसे बड़ा फायदा एक तो ये होगा कि आपकी ज़रूरी अजनास ज़ाया होने के बजाय उसके ऊपर वैल्यू एडेड आपको टच मिलेगा और आप एक्सपोर्ट कर सकेंगे, आप स्टोर कर सकेंगे। नंबर 1। नंबर 2, देहात में जो आपकी जो अनएम्प्लॉयड लेबर है उनको स्किल्स मिलेगी, वो वहीं पर एम्प्लॉय होगा और वो नकले मुकानी करके शहर में नहीं आएंगे और शहर के ऊपर ज्यादा बोझ नहीं बनेगा उनका। ये है वो जो अपना विजन जो मुस्लिम लीग नून लेके आ रही है कि हम इंशाअल्लाह हम देहात में जहां पर हमने कनेक्टिविटी कर दी, कम्युनिकेशन कर दिया, वहां पर हम देहात की जिंदगी बदलने के लिए, वहां के लोगों को वहीं पर रखने के लिए प्रोडक्टिवली हम वहां पर एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रियल हम विजन हम लेके आ रहे हैं। बिल्कुल। अब आए जो अगले चैलेंजेस हमें क्या हैं। मेरे नजदीक सबसे बड़ा चैलेंज जो है आने वाले दिनों, हफ्तों और सालों में वो पानी का है। और हिंदुस्तान बड़ी ढिठाई के साथ डैमों के ऊपर डैम बना रहा है। कोई कानून, कोई कायदा, कोई सिक्योरिटी काउंसिल, कोई यूएन, कोई इदारा वो उसकी परवाह नहीं करता और पाकिस्तान के आने वाले पानी के ऊपर वो अपना डैम बना रहा है और हमारे लिए बेपनाह मुश्किलात खड़ी कर रहा है। माजी के अंदर जाकर रोने धोने का कोई फायदा नहीं। सीधी बात मैं कर रहा हूं कि आए अल्लाह का नाम लेकर सब मिल जाएं और पहले दिन इलेक्शन के बाद दयामेर भाषा डैम के लिए दिन रात काम करना शुरू कर दें। दयामेर भाषा डैम के लिए दिन रात काम करना शुरू कर दें। ये बहुत बड़ी ये अपॉर्चुनिटी भी है, चैलेंज भी है। इसके ऊपर मुझे किसी ने कहा जी कि 10-12 अरब रुपए खर्च होंगे। यहां पर मेज अब तो छोटा मेज डॉलर, सॉरी, 10-12-14 अरब डॉलर खर्च होंगे। पैसा कहां से आएगा? ये सुनने वाली बात है। मैंने कहा उसी तरह आएगा जिस तरह ये 5000 मेगावाट गैस के हमने मंसूबे लगाए हैं। उस नौजवान के आगे फिर उसको सवाल करने की हिम्मत ना हुई। मैंने कहा 2.5 अरब डॉलर के ये 5000 मेगावाट के मंसूबे लगे हैं। कोई सोच सकता था कि माजी करीब या माजी बाइद में 200 मिलियन डॉलर के लिए चलेंगे वर्ल्ड बैंक, चलेंगे एशियन बैंक, वहां से लेंगे। अगर हम इसके लिए 5000 मेगावाट के लिए वर्ल्ड बैंक जाते तो अभी फिजिबिलिटी भी मुकम्मल ना होती, पैसा आना तो दूर की बात थी। 2.5 साल में ये मंसूबे ऐसे नहीं लग गए। ये अल्लाह ताला ने वसाइल पैदा किए और इतनी बर्क रफ्तारी से बने कि मैं खुद भी आज हैरान हूं कि वाकई ये प्लांट लग गए हैं।
तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि द्यामेर भाषा डैम हमारी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है, टॉप मोस्ट प्रायोरिटी। और उसका फायदा क्या होगा? 4,500 मेगावाट पन बिजली आपको मुहैया होगी, जो अप फ्रंट तो महंगी होगी क्योंकि कैपिटल सरमायाकारी बहुत होती है, मगर लॉन्ग टर्म वही 8 अन्य रुपए की उसकी कीमत आ जाएगी। आपको यही चाहिए। नंबर 2, क्या हम कब तक तेल मंगवाते रहेंगे, कब तक गैस मंगवाते रहेंगे? नंबर 2, द्यामेर भाषा में जो रिजर्वोयर जो है, पानी जमा करने का जो स्टोरेज है, वो 6 मिलियन एकड़ फीट है, 6 मिलियन एकड़ फीट, जो कि आपकी पानी की जरूरियात को पूरा करने के लिए बेहद मुमद्दो मामिन साबित होगा। आपकी जमीनों को आज अगर पानी नहीं मिलता बाज़ औक़ात और फसलें सड़ जाती हैं, किसान तबाह हो जाता है, तो उसका जवाब द्यामेर भाषा डैम है। अगर आज हमारे फ्लैश फ्लड्स कभी आते हैं तो तबाही फेर देते हैं, तो उसका जवाब फ्लैश फ्लड्स का द्यामेर भाषा है। अगर अपना जो सिल्टेशन होती है नीचे मंगला में या तरबेला में, तो सिल्टेशन को कंट्रोल करने के लिए उसका जवाब द्यामेर भाषा है। तो द्यामेर भाषा, मेरे बुजुर्गों, भाई और बहनों, नौजवान साथियों, अगर हमें चंदा भी इकट्ठा करके पूरे पाकिस्तान को अगर हमें करना पड़ा तो इंशाअल्लाह हम करेंगे। और अल्लाह ने चाहा, हमारा आपसे वादा है कि 5 साल में ये मुकम्मल नहीं हो सकता, मैं गलत बयानी नहीं करूंगा, खान साहब जो मर्जी कहें, ये शायद 6 साल में 7 साल में मुकम्मल हो जाए, लेकिन 5 सालों में 80%, 70% ये मुकम्मल हो जाएगा। अगर हमने इसके ऊपर अल्लाह का नाम लेकर काम शुरू किया और धरने ना हुए और लॉकआउट्स ना हुई, तो ये इंशाअल्लाह ये मुकम्मल होगा। धरनों और लॉकआउट्स के बावजूद बिजली के अंधेरे दूर होना कोई मामूली बात है, ये एक मौजज़ा है, ये अल्लाह का खास काम है। तो इसलिए पानी की शॉर्टेज को पूरा करने के लिए द्यामेर भाषा हमारी जिंदगी का अब एक हिस्सा बन चुका है। इसी तरह जो धासू डैम है उसके ऊपर काम जारी उसारी है। धासू सिर्फ पावर प्रोजेक्ट है, वो रन ऑफ द रिवर है, वहां पर पानी जखीरा नहीं हो सकेगा, उसके ऊपर काम दिन रात काम जारी है। और द्यामेर भाषा के ऊपर मियां नवाज शरीफ की हुकूमत के ज़माने में 100 अरब रुपए अपने खर्च करके ज़मीन खरीद ली गई। और इसके लिए मैं अपने चीफ मिनिस्टर जो हैं गिलगित बल्तिस्तान, मेरे भाई, इनकी बड़ा इसमें रोल है। इन्होंने ज़मीन खरीदवाने में बड़ा इन्होंने काम, हफीज़ साहब ने बड़ा इन्होंने काम किया, अल्लाह इनको जज़ा दे। इन्होंने बड़ी शानदार इन्होंने काविश की। मेरे बुजुर्गों, भाई और बहनों, अगला एक बहुत बड़ा एक चैलेंज है, वो है बेघरों की बहुत बड़ी आह और उनकी बहुत बड़ा खामोश एहतजाज के उमरा अशराफियत तो आलीशान महलों में रहे, सरकारी लोग सरकारी घरों में रहें, पॉलिटिशियंस अपने घरों में रहें, और जिंदगी के वो तबकात जिनकी दहलीज पर जिंदगी की हर नेमत उनकी चौखट पर सलाम करती है, उनके तो आलीशान महल हों, और पाकिस्तान की एक बड़ी आबादी किराए के घरों पर रह रही हो, और किराएदार के साथ जो मसाइल है, जो मामलात हैं, वो कितने संगीन होते हैं, कितना उसका एक बड़ा मुश्किल होती है। और फिर शुमार सोशल प्रॉब्लम्स। तो हाउसिंग, रिलायबल, अफोर्डेबल, कंफर्टेबल, लो कॉस्ट हाउसिंग स्कीम आम आदमी के लिए ये जिंदगी की वक्त की अहम तरीन जरूरत है। इसके ऊपर बहुत देर हो चुकी, और माजी में मैं कहूंगा कि सरकारी जो हाउसिंग स्कीमें बनती रहीं, उनकी नेक नामी से आप अच्छी तरह वाकिफ हैं। और जो प्राइवेट भी बनी, अक्सर सबकी बात नहीं करता, कुछ बहुत अच्छे हैं, लेकिन अक्सर उन्होंने भी आवाम को चूना लगाया। हम यहां पर आज ऐलान कर रहे हैं कि हम इंशाअल्लाह इस मुल्क के अंदर अगले 5 साल दौर में, अगर अल्लाह ताला ने मौका दिया, तो अफराद के लिए लाखों घर अफोर्डेबल लो कॉस्ट हाउसिंग स्कीम हम बनाकर देंगे। उनका जो कर्जा होगा उसके ऊपर सूद कम होगा, और कर्जा हुकूमत पाकिस्तान या हुकूमत सूबे की हुकूमत उनको मुहैया करके देगी। और क्राइटेरिया क्या होगा? गरीब आदमी जो अपनी एक घर क्या एक कमरा में न बना सके, आज भी उनके लिए
अल्लाह की ज़मीन फर्श का काम देती है और खुदा का जो अर्श है वो आसमान, वो छत का काम देता है, उनके लिए ये हाउसिंग स्कीम बनाएंगे। और उसका फायदा क्या होगा कि लाखों बेघर अफराद, उनको घर मिलेंगे, वो इस मुल्क पाकिस्तान में पहली मर्तबा अपने आप को मालिक समझेंगे और इसके साथ जो इकोनॉमी का जो पहिया है वो बड़ी तेजी से घूमेगा। आप सब, आपने घर बनाए हुए हैं, मैंने भी घर बनाया हुआ, आप जानते हैं, लकड़ी, कील, सीमेंट, आपका चूना, ईंटें, राज मिस्त्री, लेबर और लोहा, नट्स, बोल्ट, दरवाजे, शीशा, यानी तकरीबन 40-50 जो सनतें हैं वो रातों रात उनका जो पहिया जो है घूमना शुरू हो जाएगा और लाखों लोगों को रोजगार इस तरह मिलेगा, इस तरह इंजीनियर्स, अपना टेक्नीशियंस, इलेक्ट्रिशियंस और मिस्त्री, मेसन्स, राज, लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा और इकोनॉमी का पहिया आपका बड़ी तेजी से घूम रहा होगा। आप मुझसे पूछते हैं कि इस कुर्ब जवार में कौन सी बेहतरीन मिसाल है। मिसाल तो अच्छी है लेकिन देना पड़ता है मजबूरन। हिंदुस्तान में हाउसिंग स्कीमें बैंकों के ऊपर लाजिम है कि वो अपने जो उनका डिस्बर्समेंट, उनका जो शेड्यूल है उसमें इतने % लो कॉस्ट हाउसिंग सेक्टर को जाएंगे। इसी तरह हम कानून लेके आएंगे और हम लो कॉस्ट हाउसिंग के लिए हम कानून बनाएंगे और उस कानून के जरिए बैंकों पर लाजिम होगा कि वो गरीब, यतीम, बेवा, बेघर, बेआसरा के लिए वो घर का इंतजाम हुकूमत वक्त बड़ी शानदार हाउसिंग स्कीम से करेगी। आपका सवाल होगा कि शहबाज शरीफ, माजी में तो आपने खुद कह दिया कि सरकारी स्कीमें जो हैं वो इतनी कामयाब नहीं रहीं, तो ये किस तरह होगी? जिस तरह हमने ये पावर प्लांट्स लगाए हैं, जिस तरह हमने पक्की सड़कें और सौखे पेंडे बनाए, जिस तरह हमने अस्पतालों को ठीक किया है, जिस तरह हमने स्कूलों को ठीक किया है, जिस तरह हमने वज़ाइफ दिए हैं, इसी तरीके से, इसी जुस्तजू और इसी लगन के साथ इंशाअल्लाह गरीब और एक आम आदमी के लिए हम हाउसिंग स्कीम लेके आएंगे। अगली बात, सीपैक। सीपैक एक तोहफा है पाकिस्तान के लिए और वो तोहफा अनमोल है। मैंने आपको 11,000 मेगावाट का शामी साहब तजिया बता दिया, उसमें 3,000 मेगावाट सीपैक है। अगर वो 3,000 मेगावाट ना होता तो आज भी लोड शेडिंग 8-6 घंटे होती। वो सीपैक का 3,000 मेगावाट, 5,000 मेगावाट हमारा पाकिस्तान की इस हुकूमत का, मुस्लिम लीग नून का, और बाकी मैंने आपको गिनवा दी है। ऑल्दो अब तो बारिशें हुई हैं, अब इस साल पिछले साल के मुकाबले में डैमों में पानी कम होने की वजह से 1,500 मेगावाट बिजली कम है। सॉरी, 3,000 मेगावाट बिजली कम है। 3,000 मेगावाट बिजली कम आ रही है डैमों में पानी कम होने की वजह से। और अगर ये सीपैक ना होता और अगर ये हम मुस्लिम लीग नून ये अपना अल्लाह का नाम लेकर ना कूद पड़ती इस आतिश फिशा में, तो आज हर तरफ अंधेरे होते। तो इसलिए मैं आपको जो गुजारिश कर रहा हूं कि इसी लगन से हम इंशाअल्लाह ये लो कॉस्ट हाउसिंग की स्कीमें बनाएंगे। और ये सीपैक, जिसे मैंने अनमोल गिफ्ट कहा, खुंजराब से लेकर गवादर तक जब ये आपकी बन जाएगी तो दोनों तरफ वक्त आएगा, 2 साल में, 4 साल में, 5 साल में, 10 साल में, 15 साल में, दोनों तरफ एक नई दुनिया आबाद होगी। स्पेशल इंडस्ट्रियल जोन होंगे, एक्सपोर्ट्स जोन्स होंगे, पैकेजिंग हाउसेज होंगे, ट्रांसपोर्ट के वहां पर दफातर होंगे, वहां पर रेस्टोरेंट होंगे, वहां पर सर्विस सेंटर्स होंगे, मोटेल्स होंगे, होटल्स होंगे। ये सहाना ख्वाब लगता है, लेकिन मैं समझता हूं कि एक बादशाह भी एक बच्चा पैदा, एक बहुत बड़ी पुरुषों को इमारत भी पहले उसका नक्शा बनता है। तो इस ख्वाब में को देखने में कोई हर्ज नहीं, इसलिए कि हमने कई ख्वाबों की अल्लाह ताला के फजल से उसको हमने शर्मिंदा ताबीर किया है। तो ये सीपैक जो है, ये फिर सीपैक के जरिए जो मैंने कहा कि लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा। स्पेशल, अब देखिए, आपने मेरे जरा गौर सुने, आरिफ साहब जरा गौर से फरमाएं, आपने इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया, रोड्स बन गई, आपकी अपना पब्लिक ट्रांसपोर्ट आई है, बिजली आ गई, अब आपने उसके ऊपर इमारत तामीर करने काय की, ज़रई सनती इनकलाब की, ज़रई सनती इनकलाब की। और वो इमारत किस तरह तैयार होगी? ज़रई इनकलाब की मैंने अभी आपको नवीद सुनाई, और सनती इनकलाब की कि आप बिजली आ गई, गैस आ गई, आपने अब स्पेशल इंडस्ट्रियल जोन्स बनाने हैं। सीपैक के अंदर स्पेशल इंडस्ट्रियल जोन्स का एक बहुत बड़ी रकम मौजूद है।
बिलियंस ऑफ डॉलर्स। जब वो स्पेशल इंडस्ट्रियल जोन्स बनेंगे तो पूरे चारों सूबों में हजारों लाखों लोगों को रोजगार मिल रहा होगा, प्रोडक्शन होगी, सरप्लस होंगे, वो एक्सपोर्ट कर सकेंगे। पाकिस्तान की मईशत इस तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह वो फर्म अप होगी और फिर आपको लंदन एयरपोर्ट पर, जॉन एफ कैनेडी एयरपोर्ट पर आपकी पासपोर्ट की इज्जत होगी, आपको तौकीर से देखेंगे, खुदा न खास्ता हकारत से नहीं देखेंगे। वो ये नहीं कहेंगे कि ले गए आ गए कशकोल। ऐसे मुल्क से लोग आए हैं जो कि बड़े उन्होंने मेहनत की है, अपने मुल्क को बनाया है। तो मैं समझता हूं कि सी पैक का ये बहुत बड़ा ये एक होगा। फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट, अब देखिए मैंने कितनी देर बाद पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात की है ताकि इमरान खान साहब फिर न कह उठे कि मैं अगले 5 साल मुझे केपी में मौका मिला, जो कि नहीं मिलना, उनको लोगों ने वोट नहीं देने। मैं केपीके में मैं कोई जंगला बस नहीं बनाऊंगा, मैं अस्पताल बनाऊंगा, मैं कॉलेज बनाऊंगा। फिर 2022 में कहेंगे नहीं नहीं जंगला बस बनाते हैं। आज पेशावर को उन्होंने 70 अरब रुपए का खंडात बना दिए हैं। जंगला बस तो नहीं बनी, अवाम की बस हो गई है। तो हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट को लेके आएंगे। देखिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट किसी भी मुल्क की मईशत की, समाज की, माश की वो रीढ़ की हड्डी होती है, रीढ़ की हड्डी। मुझे बताएं पेरिस में फिर अंडरग्राउंड क्यों चलती हैं? लंदन में अंडरग्राउंड के ऊपर वो सालाना 4 बिलियन पाउंड सब्सिडी क्यों देते हैं? चीन में क्यों देते हैं? रूस में क्यों देते हैं? क्या पब्लिक ट्रांसपोर्ट का मतलब ये है सिर्फ कि इनके पास ये मेरे पास मर्सिडीज बेंज हो और BMW हो और आम आदमी धुएं वाली गाड़ियों में धक्के खाए, माएँ बेटियां और बेटे वो अपना परेशान हो, अपने स्कूलों में न पहुंच सके, अस्पतालों में न पहुंच सकें? हमें अगर उनको माशी आज़ादी दिलानी है इस मुल्क के आम आदमी को, तो रिलायबल ड्यूरेबल पब्लिक ट्रांसपोर्ट उनको हम अफोर्डेबल देंगे तो ये मुल्क की मईशत, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, अस्पताल, कारखाने, इनकी पैदावार बहुत आगे जाएगी। नर्सें टाइम पे पहुंचेंगी, डॉक्टर्स टाइम पे पहुंचेंगे, अपना मजदूर फैक्ट्री में टाइम पर पहुंचेगा, तालिब टीचर। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के ऊपर हम मजीद इन 5 सालों में काम करेंगे और चारों सूबों में। और ये हमारा वादा है कि जब तक कि हम बाकी 2 सूबों में हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट को आगे ना बढ़ाएं, हम पंजाब की स्पीड को स्लो रखेंगे और सिंध स्पीड को आगे लेके आएंगे, केपीके की स्पीड को आगे लेके आएंगे, बलूचिस्तान की स्पीड को आगे लेके आएंगे, ताकि वो सही मानों में पाकिस्तान स्पीड बने, नॉट पंजाब स्पीड, वो पाकिस्तान स्पीड बने। फिर आप देखें कि हमने इस साल पहली मर्तबा जो टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इस दुनिया में कितना इस वक्त अहम रोल है, जिसका कोई शुमार नहीं, और हमने इस मामले में हर लिहाज से हम बाकी ममालिक के बहुत पीछे रह गए। हिंदुस्तान की जो IT लेड जो इंडस्ट्री है, उसकी जो एक्सपोर्ट्स आप मुझसे बेहतर जानते हैं, तकरीबन $60 अरब। Sorry, ma'am, thank you very much. Today I am being corrected. This is how democracy really works. तो मैं ये कह रहा था कि हिंदुस्तान 100 अरब से ज्यादा उसकी अपना IT लेड टेक्नोलॉजी जो है उसकी एक्सपोर्ट्स हैं, और हमारी क्या है आती है। फिर इदारों में एफिशिएंसी लाने के लिए, चेक इन बैलेंस लाने के लिए, ओवरसाइट लाने के लिए, मॉनिटरिंग करने के लिए और रिजल्ट्स कौम को दिखाने के लिए, चाहे वो एजुकेशन है, चाहे वो हेल्थ है, चाहे वो आपके लॉ एंड ऑर्डर है, चाहे वो इंडस्ट्री है, चाहे वो एग्रीकल्चर है, कि मॉनसून आ रहा है, कीड़े खुदा न खास्ता कॉटन की जो तबाह करेंगे, एडवांस जो वार्निंग सिस्टम है, इसका दूर दूर तक निशान नहीं। और खुद नमाई में मैं यकीन नहीं रखता, लेकिन फिर कह दीजिए, मुझे कहना पड़ता है मजबूरन कि पंजाब फिर चारों सूबों में IT लेड टेक्नोलॉजी में सबसे आगे है, सबसे आगे है। आप देखें हमारे स्कूलों में हमने 50,000 टैबलेट्स दिए हैं स्कूलों में, ताकि वो हाजिरी जो है वहां पर उसको पढ़ाए और वो रिपोर्ट करते हैं लाहौर। हमने जितने भी पंजाब के अस्पताल हैं
वहां पर सारी की सारी दवाइयों की उनकी गिनती, रसीद, डिस्ट्रीब्यूशन, आपकी सीटी स्कैन, उसके जो एक्सरे जो हैं वो अपलोड होते हैं, लाहौर आते हैं, मुल्तान आते हैं, जहां पर उन्होंने मेगा सेंटर्स बनाए हुए हैं। वहां पर वो जो रेडियोलॉजिस्ट है वो लिखता है रिपोर्ट और वापस भेजता है लिया, भक्खर, मियाँ वाली, उनको भेज देता है। ये जो इंफॉर्मेशन लेड टेक्नोलॉजी है, ये इंकलाब लेके आया है इस दुनिया में। हम इंशाअल्लाह इसको लेके, और मैं आपको इसके दो मिसालें बता देता हूँ। और लाहौर का जो सेंटर है, आप सेफ सिटी सेंटर, आप देखें कि मैं आपको बता सकता हूं कि अब पूरे लाहौर में 12,000 कैमरे लगे हैं। जहां कोई चोरी, कोई उसको ना देखे या रिपोर्ट करे वो अलग बात है, मगर कैमरे की आंख हर चीज देख रही है। कहां खुदा ना खास्ता बलवा हो गया, कहां अस्पताल में कोई हड़ताल हो गई, कहां कोई अपने आग लग गई, अल्लाह ना करे। ये सारा ये करिश्मा है आईटी टेक्नोलॉजी का। और इसके साथ मैं आपको इस साल की मिसाल देता हूं। पंजाब इंफॉर्मेशन लैंड रिकॉर्ड सिस्टम LRIMS, जिसने पंजाब की देही आबादी के 5 करोड़ अफराद की जिंदगी बदल दी। अब उनको 15 मिनट में टाइटल डीड मिलती है, उनका वो जो इंतकाल की उनको मिलती है। पहले पटवारी पैसे लिया करता था। मगर जो मैं बात बताना चाहता हूं, इस साल हमने जो गंदम की बोरियां छोटे किसानों को दी, हमने इस सिस्टम के जरिए दी हैं। मैं हैरान रह गया हूं मेरे बुजुर्गों, भाई और दोस्तों, इस साल मुझे एक भी शिकायत नहीं मिली, एक भी शिकायत नहीं मिली। ये है वो निजाम जिसको हम आगे बढ़ाएंगे और पूरे मुल्क में इसका इजरा करेंगे। आखिरी दो बातें करना चाहता हूं, वो ये कि जो पैसा जाया हो रहा है, चाहे वो करप्शन के जरिए, कहते देखें हमारी हुकूमत को ये क्रेडिट जाता है कि हमने अल्हम्दुलिल्लाह जो FBR की जो रसीट्स है, जो आमदन है टैक्सेस की, उसमें बेपनाह इजाफा हुआ है और उसमें मजीद बेपनाह की गुंजाइश है। किस तरह कि जितना टैक्स पोर्ट पे डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स जो टैक्स पेयर देता है, वो जितना देता है आगे लेने वाला, उसमें बड़ा गैप है। अगर इस साल 4,000 अरब रुपया टैक्स में आया, 4,000 अरब रुपया टैक्स में आया, तो 1,000 अरब रुपया खाया भी क्या होगा। उस लूप होल को हम प्लग करेंगे, इसको हम प्लग करेंगे। किस तरह? थ्रू इनोवेशन, थ्रू मॉडर्न टेक्नोलॉजी। इसी तरीके से जो करप्शन है, बड़े बड़े मेगा, मैं हर रोज नाम लेता हूं, मेरा ख्याल है मेरी जुबान अब थक गई है। खुदा करे कि नैब किसी दिन उनके ऊपर ध्यान करेगा। चाहे वो नंदीपुर है, मुझे तो कल बुला लिया, कल भी मैं गया, पेश हुआ वहां पर साफ पानी में, और फिर जो हकायक से जवाब दिए, और जो अखबार में लिखा है, जो असल बातें तो वहां पर हुई वो तो अखबार में नहीं आई, जो मैं, लेकिन और अल्हम्दुलिल्लाह बताया कि किस तरह 70 अरब रुपए इस चीज ने बचाए इस कौम के, और जिन्होंने कई सौ अरब खा गए उनको कोई ना पूछता ना बुलाता है। नैब इस तरह इस मुल्क में एहतसाब करेगा। तो इसलिए चाहे वो ये बड़े बड़े, चाहे वो नंदीपुर है, चाहे वो NICL है, अब किसी ने बुलाया बाबर रहमान साहब को कि जनाब आए, आपने ये नंदीपुर में आपने कौम का बेड़ा गर्क कर दिया, आपने 15-20 अरब रुपए जाया कर दिया, आपने 3 साल मशीनरी गल सड़ गई, कराची में पड़ी रही, उस वक्त 20-20 घंटे लोड शेडिंग थी, आपका बहुत बड़ा आप कौम, और फिर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है, आप आए। किसी ने बुलाया उनको। चिन्नौट में 450 अरब रुपए का टीका लगा, किसी ने बुलाया उनको, किसी ने पूछा। आजकल जो हाजिरियां हैं वो हमारी हैं, मैं जा रहा हूं, शायद वासी जा रहे हैं और दूसरे जा रहे हैं, कोई बात नहीं, ये वक्त चल जाएगा। लेकिन अगर कौम को बनाना है तो ये तरीका नहीं है। कौम को अगर बनाना है तो शफाफ, अबव बोर्ड आपको और एपॉलिटिकल आपको अकाउंटेबिलिटी करनी होगी, ताकि अगर किसी ने कौम का पैसा खाया है तो वो कौम को वापस आए, और अगर किसी ने कौम की बचत की है तो उसको कौम का एक हीरो बनाया जाए, ताकि सजा और जजा की जो एक हसीन इम्तजाज है, जो जुड़ी हुई बात है, वो इसको आगे बहुत तहसीन और आगे चले। ये वगरना अगर विच हंटिंग होगी तो तबाही के अलावा हमारा कुछ नहीं होगा। इसी तरह PIA में 50 अरब रुपया साल का ज़ाया होता है। स्टील मिल में आपका सर्कुलर डेट जो है बिजली का बात नामुमकिन होती, ये जुमला मैंने कहा था कि बहुत बड़ा चैलेंज है डिस्ट्रीब्यूशन का और ट्रांसमिशन का। लाइनें बहुत कमजोर हो गई, ये प्लांट बड़े जवान हैं, आतिशी तौर पर जवान है, और वो मशीनें, वो तारें बहुत पुरानी बूढ़ी हो गई,
उस सारे निज़ाम को बदलना होगा, चोरी को रोकना होगा बिजली के, और ट्रांसमिशन लाइन को बेहतर बनाना होगा, एफिशिएंसी लानी होगी, जिसके लिए 1, 2 साल, 3 साल लग सकते हैं। फिर क्या होगा, बिजली की चोरी अपना बहुत कम हो जाएगी, आपकी जो ट्रांसमिशन जो लॉसेज हैं बिजली के वो बहुत कम हो जाएंगे। उसका क्या फायदा होगा, आपकी बिजली सस्ती हो जाएगी। मेरे बुजुर्गों, भाइयों और बहनों, बहुत बातें और करने की हैं, मगर 2 बातों पर मैं इख्तिताम करूंगा कि मैंने जब आम आदमी की बात की तो मैंने मजदूर की बात भी की है, उसमें शामिल है। मैंने यतीम और बेवा की बात भी की है, मैंने एक मेहनतकश की बात भी की है, मैंने एक बुजुर्ग की बात भी की है, मैंने एक माजूर की बात भी की है, मैंने एक मफलुकुल हाल जो लोग हैं उनकी बात भी की है, जो महरूबुल मईशत हैं उनकी बात भी की है, ताकि उनको हम सहूलत दे सकें, उनको हम उनके बच्चों को फ्री एजुकेशन दे सकें, उनको पब्लिक ट्रांसपोर्ट में फ्री आमदरफ्त हो, उनको किराया न देना पड़े। इसी तरह पाकिस्तान सही मानों में एक सोशो इकोनॉमिक एक सोशल वेलफेयर स्टेट बनेगा और कायद और इकबाल की तस्वीर बनेगा। इन इशार के ऊपर मैं अपनी बात खत्म करता हूं कि जब अपना काफिला निकलेगा, जब अपना काफिला जहां से चाहेंगे रास्ता वहीं से निकलेगा, वतन की मिट्टी मुझे एड़ियां रगड़ने दे, मुझे यकीन है चश्मा यहीं से निकलेगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, कायद आजम जिंदाबाद।